Yes. So in the last class, we have learned about um, literary criticism. Like what is criticism, where it has derived from. So criticism is derived from the Greek word kririn, that means to judge, or it has also a Greek word that is kritikos, which means to judge again. So we have seen the Plato's major ideas. After that, we have seen the Aristotle's works, and we have seen the Horace works. Now let us come to the main topic, that is from Philip Sidney to Matthew Arnold. What are their works? In which age they were? We will see everything. So without wasting further time, let us continue. So the first writer is Sir Philip Sidney. So he is an English poet, he is an English scholar and soldier. He is famous because the figure of Elizabethan age, मतलब in Elizabethan age के period में थे, that's what he is famous for, Elizabethan age. So the famous work of him is An Apology for Poetry. An Apology for Poetry is his famous work, which was written in the year 1595. Which was written in the year 1595. So basically ये एक response था. It was an response. So ये एक response तो था, but for what? So it was a response to Stephen Goosen's. Stephen Goosen is the name of the writer. इनका जो वर्क था वो था स्कूल ऑफ अब्यूज. सो स्कूल ऑफ अब्यूज के रिस्पॉन्स में ये एन अपॉलजी टू पोएट्री लिखी गई थी. अपॉलजी टू पोएट्री लिखी गई है सर फिलिप सिडनी ने, एंड स्टीफन गुसन ने ये स्कूल ऑफ अब्यूज. सो एलिजाबेथन एज जो एज थी वो पोएट्री की वैल्यू डाउन कर दी गई थी उस एज में, बिकॉज पोएट्री जो है क्वीन मोनार्च के टाइम पे क्लासिकल ओरिएंटेशन में यूज होती थी. इस टाइम पीरियड में ऐसा कहा गया कि पोएट इज गॉड बिकॉज ही क्रिएटेड हिज ओन वर्ल्ड. एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड जो एक पोएट इमेजिन करके बनाते, दैट्स व्हाट इट इज सेड कि पोएट इज गॉड. और फ्यूचर लाइक पास्ट में प्लेटो एंड हेरिटोस जो भी पोएट्री लिखे थे वो लैटिन पोएट्स फ्यूचर में मतलब अभी करंटली उस टाइम पर एलिजाबेथन एज में यूज करना स्टार्ट कर दिए थे. तो ये क्लासिकल टाइम था पोएट्री का, बिकॉज पहले की पोएट्री से ये लोग क्या करते थे, कुछ न्यू आइडियाज अडाप्ट करके न्यू पोएट्री अपनी खुद की बनाना शुरू कर देते थे. सो ये जो इनका है एन अपॉलजी फॉर पोएट्री, इसमें इन्हों पोएट्री पे क्या क्या चार्जेस लगा. इन्हों बोले कि पोएट्री इज वेस्ट ऑफ टाइम. ये सब इन्हों ये एन अपॉलजी फॉर पोएट्री में बोले थे कि पोएट्री इज वेस्ट ऑफ टाइम, पोएट्री इज मदर ऑफ लाइज, and poetry is the nurse of abuse. And Plato had rightly banished the poets from his ideal world. ये सब पोएट्री के ऊपर इन्हों बोले. And also he said कि Plato removed bad poets from Republic. English poets and poetry is bad. The modern writers should learn from the classical time and the classical poetry. English is an expressive language. And moreover, he copied theories from Plato. He quoted Aristotle and Horace in the criticism. तो इन्हें अपने क्रिटिसिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्लेटो, एरिस्टोटल और होरेस को इनके वर्ड्स में लाए. मतलब उन लोग के भी कुछ बातें इन्होंने ऐसे बताए जिसमें पोएट्री इन्होंने बोल रहे कि इनके हिसाब से पोएट्री इज बैड बिकॉज वो एक इमेजिनेशन है, ऐसा इमेजिनेशन जो कि रियलिटी नहीं बन सकता, विच इज अ मदर ऑफ लाइफ. जो लोगों को एक इमेजिनरी लाइफ और रियलिटी लाइफ में जब डिफरेंस मालूम हो रहा तो दैट इज लाइफ. ये डिफरेंस बताना चाह रहे थे. ऑल्सो ही सेड के प्लेटो जो है उस टाइम पे सारे पोएट्स को बैन कर देना चाहिए था,
सो दैट इतने झूठे बातें, इतने इमेजिनेशंस लोग एक्सपेक्ट नहीं करना आगे. So that's what it is all about, an apology for poetry. ये इनका सबसे फेमस वर्क है. Coming to the next writer, that is John Dryden. So John Dryden is called as the father of English literary criticism. He is the father of English literary criticism. So he has worked consistently. He did critical development, or also he contributed a lot in English criticism. That's what he is called as the father of English literary criticism. The famous works that he has done throughout his life is Essay of Dramatic Poesis, that is from 1668, and it was actually written in 1666 but got published after 2 years, that is 1668. Let me mention it here for you. 1666 में ये लिखी गई थी एंड ये 1668 में पब्लिश हुई थी. ये एक बायोग्राफी थी जिसमें पर्टिकुलरली ड्रामा पे फोकस किया गया था. एंड इसमें इन्हों बोले कि लर्न टू राइट वेल और नॉट टू राइट एट ऑल. मतलब लिखो तो या तो अच्छा लिखो या फिर लिखो ही नहीं, ऐसा इनके ड्रामास के बारे में बोला. मतलब एक अच्छा ड्रामा लिखो या फिर ड्रामा लिखो ही नहीं, ऐसा इनका बोलने का मतलब था. तो बेन जॉनसन, फिलिप सिडनी, इन सब के क्रिटिसिज्म के बारे में सैमुअल जॉनसन जो है इनके ड्रामेटिक पोएसिस में बात करें. इनका फर्स्ट थॉट ये था कि कंपोजिशन, मतलब जॉन ड्राइडन जो है पहले के राइटर्स के प्रिंसिपल्स, मेरिट्स, इन सब के कंपोजिशंस बताए थे ड्राइडन ग्रीक रोमन्स के. और इन्होंने बोले कि ग्रीक रोमन्स के रूल्स जो थे वो उतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे. और ड्रामेटिक पोएसिस क्या है? ये एक ड्रामा है एक्चुअली में, जिसमें 4 कैरेक्टर्स है जो कि एक बोट में ट्रैवल कर रहे हैं. इग्नस, क्राइट्स, लिसिडियस एंड निएंडर, ये चारों लोग हैं. और ये चारों लोग जो है लोग एक एक, जैसा कि इग्नस जो है वो लॉर्ड प्रकृत है, मतलब मॉडर्न ड्रामा के बारे में उन्होंने बात कर रहा है. क्राइट्स जो है वो सर रॉबर्ट हार्वर्ड है जो कि एशियन ड्रामा के बारे में उन्होंने बोल रहे हैं, दैट ही इज एशियन ड्रामा. नेक्स्ट जो लिसिडियस है उन्होंने फ्रेंच ड्रामा है. एंड जो निएंडर है वो खुद जॉन ड्राइडन है. मतलब ये 4 लोग इन्हों बताए, ऐसा नहीं बोले इन्हों डायरेक्टली कि ये मॉडर्न ड्रामा है, ये एशियन ड्रामा है. इन लोग जो है इन्हों ये नाम दिए लोग को, इग्नस, क्राइट, लिसिडियस एंड निएंडर. ये कैरेक्टर के नेम्स है. एक्चुअल में इन लोग के नेम्स दूसरे हैं एंड रियलिटी में इन लोग की बात जो है ड्रामास के ऊपर कर रहे थे. सो ऐसी 1 by 1 जो है ये ड्रामास में बात हुई. फर्स्ट क्राइट्स, मॉडर्न एशियन ड्रामा जो है उन्होंने अपने बारे में बताए, उनके क्वालिटीज बताए. उन्होंने बोले कि मॉडर्न राइटर्स जो है पुराने राइटर्स को ही कॉपी कर रहे हैं. फिर इग्नस बोले कि एशियन राइटर्स जो है इम्प्रूव हुए थे, अच्छे थे, लेकिन अभी के लोग जो है एशियन राइटर्स को ब्लाइंडली फॉलो कर ले रहे हैं, कुछ सोच रहे नहीं लेकिन ऐसे ही लिख ले रहे हैं. तो ऐसी बात हुई. लास्ट में जो है इग्नस बोले कि जो गुड राइटर्स है, मतलब इग्नस जो है वो एक्चुअली में जॉन ड्राइडन है. उन्होंने बोले कि जो गुड राइटर्स है उन लोग को अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा लेकिन क्रिटिसिज्म ज्यादा मिल रहा. उन लोग को लव, इमोशन, इस सब की जरूरत है, लेकिन लोग उन लोग को लव नहीं शो कर रहे और उन लोग कुछ भी न्यू क्रिएट नहीं कर रहे. तो मॉडर्न राइटर्स जो है उन लोग बहुत सारा वर्क कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि लोग ब्लाइंडली कॉपी कर रहे हैं, उन लोग उस पर सोच के समझ के कुछ डिसाइड करके उसमें अकॉर्डिंग टू द टाइम चेंजेस लाकर प्रेजेंट कर रहे हैं. सो ओवरऑल ये जो ड्रामा है एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसिस, दैट ड्रामा इज बेसिकली अबाउट टाइप्स ऑफ ड्रामास के बीच में डिस्कशन कि कौन बेस्ट है. उसके बाद यही ड्रामा में
जब ड्रामा पे डिस्कशन हो गया तो उसके बाद राइम ड्रामा में जो रिदम रहती वो, और ब्लैंक वर्ड्स ड्रामा जो कि सिंपल लिखा जाता, वो दोनों ड्रामास के ऊपर डिस्कशन हुआ। सो राइम ड्रामा मतलब ऐसा ड्रामा जिसमें राइमिंग रहती, एंड ब्लैंक वर्ड्स ड्रामा जो ऐसा ड्रामा है कि जो अनराइम्ड रहता, मतलब मीटर्ड लाइन में, सिंपल पैराग्राफ्स में हम इसको बोल सकते हैं, और इसमें कोई भी जो है रिदम नहीं रहती, सिंपल वर्ड्स या फिर पैसेज पैराग्राफ जैसा लिखा हुआ रहेगा, इसको हम बोलते कि ब्लैंक वर्ड्स ड्रामा, जो कि ब्लैंक वर्ड्स में रहता है, एकदम सिंपल। और राइमिंग ड्रामा यू ऑल नो व्हाट इज इट, रिदम में रहता। नेक्स्ट इज सैमुअल जॉनसन। सो सैमुअल जॉनसन का जो बर्थ ईयर है दैट इज 1709, and he died in the year 1784. सैमुअल जॉनसन एक पोएट के साथ साथ एसेइस्ट, बायोग्राफर एंड लेक्सिकोग्राफर भी है। लेक्सिकोग्राफर मतलब समवन हु राइट डिक्शनरी, एंड ही इज आल्सो कॉल्ड एज डॉक्टर जॉनसन। यू ऑल नो कौन सी डिक्शनरी, हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके। सो सैमुअल जॉनसन एक ऐसे राइटर है जो कि 52 राइटर्स के बारे में बायोग्राफी लिखे, 52 राइटर्स की बायोग्राफी लिखे। Okay, you should remember this. ऑल्सो इन्हों कंट्रीब्यूट करे थे प्ले राइट में, एसेस में, मोरल्स में, क्रिटिक में, और बायोग्राफर्स की लाइफ हिस्ट्री में। Some of his major works are Life of Mr. Richard Savage, that was written in 1744. ये सैमुअल जॉनसन के एक फ्रेंड थे, उनकी लाइफ के बारे में लिखे थे जॉनसन। नेक्स्ट इज द रैम्बलर। ये जो है पीरियोडिकली पब्लिश हुआ था, मतलब एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे ये पब्लिश होता था। 1750 टू 1752 2 इयर्स तक ये पब्लिश हुआ था, और इसमें टोटल 208 आर्टिकल्स है। लेट मी मेंशन हियर के 2 इयर्स तक पब्लिश हुआ था ये। वो 2 इयर्स है 1750 टू 1752, और 208 आर्टिकल्स हुए थे इसमें, और ये ट्यूसडे एंड सैटरडे पब्लिश किया जाता था। उसके बाद इंग्लिश डिक्शनरी लिखे थे जॉनसन 1755 में, 1755 में लिखी गई थी वो डिक्शनरी। एंड वो डिक्शनरी जो है फर्स्ट पब्लिश 1755 में ही हुई थी। 8 इयर्स लगे थे उनको ये कंप्लीट डिक्शनरी कंपाइल करने के लिए। 6 हेल्पर्स की मदद से डिक्शनरी कंपाइल की गई थी। ये डिक्शनरी में अ टोटल ऑफ 40,000 वर्ड्स थे, 40,000 वर्ड्स, 6 helpers, and it took 8 years to compile. Next famous work है The Idler, 1758 to 1760, 2 years में ये वर्क पब्लिश हुआ था। ये भी एक पीरियोडिकली पब्लिश हुआ था, इसमें 103 एसेस है। ये न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था, लंदन के, वीकली पब्लिश होता था ये, लाइक वीकली वंस, और ये पेपर का नाम है द यूनिवर्सल क्रॉनिकल। लेट मी मेंशन इट हियर फॉर यू, द यूनिवर्सल क्रॉनिकल was the newspaper's name. Life of most eminent poets,
तो ये जो है लाइफ ऑफ मोस्ट एमिनेंट पोएट्स, इसमें इन्होंने लिखे थे बायोग्राफीज। सेवनटीन 79 टू 81 तक का टाइम में इन्होंने इसको कंप्लीट करे थे। तो इसमें 52 राइटर्स की बायोग्राफीज लिखे थे, जिसमें फर्स्ट है अब्राहम काउली। So let's come to our another writer, that is preface to Shakespeare excerpts. सॉरी, ये भी सैमुअल जॉनसन का ही लिखा हुआ था। Coming to the next writer, that is Samuel Taylor Coleridge. सैमुअल टेलर कॉलरिज बोलने में थोड़ा डिफरेंट दिख रहा, वैसे ही इज नोन एज एसटी कॉलरिज। एसटी, ओके। सो ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स, मतलब बहुत अच्छे क्रिटिक थे। ही वॉज बोर्न ऑन 21 अक्टूबर 1772। His birth year was 21st October 1772. He was born in England. So it was said that 5 years की एज में ही इनको पूरी बाइबल और अरेबियन नाइट्स ये सारे बुक्स इन्हों पढ़ लिए थे। और 6 years की एज में he fell in love with a girl called मैरी इवांस, लेकिन इनकी उससे शादी नहीं हुई। बाद में सारा फिकर से इनकी शादी हुई, जो कि रॉबर्ट सॉती जो एक राइटर थे उनकी सिस्टर इन लॉ थे। सो बाद में एसटी कॉलरिज वर्ड्सवर्थ के साथ मिलके लिरिकल बैलेट पब्लिश करे थे, और बहुत सारे फेमस राइटिंग्स भी इनके हैं। इन द ईयर 1797 इन वर्ड्सवर्थ से मिले थे और लिरिकल बैलेट पब्लिश करे थे 1797 अराउंड। 1803 के टाइम उनको ठीक फील नहीं हो रहा था, और उनकी मतलब मैरिड लाइफ या फिर डोमेस्टिक लाइफ हम बोल सकते हैं, वो अनहैप्पी चल रही थी। सो आफ्टर सम इयर्स इन 1811 इन्होंने एक लेक्चर डिलीवर करे थे जो कि शेक्सपियर के ऊपर था, और अदर पोएट्स भी उसमें कंट्रीब्यूटेड थे। और ऐसा भी कहा जाता है इनके बारे में कि ही ब्रेड हिमसेल्फ फ्रॉम थोबियम हैबिट, मतलब इनको ड्रग हैबिट्स थे ये राइटर को। सो ऐसी में इन्हों थोड़े बहुत वर्क्स करे, लेकिन उतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सके थे एसटी कॉलरिज जितना कि वर्ड्सवर्थ हुए। जब इनकी तबीयत खराब हुई तो इन्होंने बहुत सारे राइटर्स के बारे में क्रिटिसिज्म लिखना शुरू करे कि किस तरीके से इन्होंने क्रिटिसिज्म शुरू करे, और क्या इन्होंने क्रिटिसिज्म से सीखे, शेक्सपियर से क्या सीखे, मिल्टन से क्या सीखे, वर्ड्सवर्थ से क्या सीखे, फिलोसफी से क्या सीखे, साइकोलॉजी से क्या सीखे। ये सब चीजें इन्होंने इनके एंडिंग टाइम में लिखी, और इनकी डेथ के बाद ये सारी चीजें पब्लिश हुई। और इन्होंने 2 फेमस वर्क्स बताए, एक तो इमेजिनेशन, दूसरा फैंसी। ये 2 चीजों के डिफरेंसेस क्या है, ये सब बहुत ही डीपली एसटी कॉलरिज बताए थे। सो इनकी जो पोएट्री थी वो जर्नल थ्योरी और मेंटल प्रोसेस पे बेस करती थी। कमिंग टू आवर नेक्स्ट राइटर, दैट इज पीबी शेली। और जो भी ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, अगर लोगों को कुछ भी डाउट रहा बाद में तो प्लीज मेरे से क्लैरिफाई कर सकते हैं आप लोग व्हाट्सएप पे पिंग करके या फिर डायरेक्ट कॉल करके। सो पीवी शेली जो है वो रोमांटिक एरा के राइटर है, और वी स्टिल हैव 9 संडेज इन अवर हैंड। ये भी बोलना था कि अभी आप लोग जो अभी तक के टेस्ट है, टोटल आई गेस 44 टेस्ट है, वो कंप्लीट कर लो। उसके बाद हम ग्रैंड टेस्ट पब्लिश करेंगे। ऑल्सो मैं आप लोग को शायद नाजिमा बोले थे मेरे को, मैं एक प्रीवियस पेपर सेंड करी तो उसके आंसर्स के साथ, तो इंशाल्लाह मैं आप लोग को प्रीवियस पेपर्स विद आंसर्स भी सेंड करती हूँ फॉर बेटर प्रैक्टिस। सो कमिंग टू द पीबी शेली, ये रोमांटिक एरा के राइटर है। He was very much interested in poetry. He wrote a lot of letters and essays.
इनका फेमस वर्क है डिफेंस ऑफ पोएट्री, जो कि 1821 में पब्लिश हुआ था। ये पब्लिश हुआ था 1821 में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लिखे थे एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री, जो कि सर फिलिप सिडनी का था। एंड नेक्स्ट अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है पीबी शेली का डिफेंस ऑफ पोएट्री। दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग ईयर में पब्लिश हुआ था, कंफ्यूज मत हो। सो एक पर्सन थे थॉमस, उन्होंने पोएट्री पे अटैक करे और उन्होंने पोएट्री को 4 चीजों में डिवाइड करे, आयरन, गोल्डन, सिल्वर एंड एज ऑफ ब्रास। एज ऑफ ब्रास जो है वो प्रेजेंट एज को बताया उन्होंने, जो कि वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी है, जहां पर पोएट्स का इमेजिनेशन डेड हो गया और सब सुप्रीमेसी है, कुछ भी अच्छा नहीं है। तो आयरन, गोल्डन, सिल्वर एज हो गई, अभी पोएट्री का खराब एज चल रहा बोलकर। तो उन्होंने पीबी शेली इसके रेस्पॉन्स में जो है पोएट डिफेंस ऑफ पोएट्री लिखे थे, जो कि 1821 में पब्लिश हुआ था। तो इन्हों इसमें क्या करे, थॉमस को लव पीकॉक्स बोल के इन्हों उसमें इस सब जो चीजों पे अटैक हुआ था उस सब का डिफेंस करे। तो शेली जो है पोएट्री की नोबैलिटी, डिग्निटी वापस लेकर आए और पोएट्री के स्टैंडर्ड्स को वापस स्टैब्लिश कर दिए एक तरीके से। और इन्होंने एक पैम्पलेट पब्लिश करे थे इनकी लाइफ में, जिससे इन्हों बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में फंस गए थे। इवन मैथ्यू और आर्नोल्ड पीबी शेली को बोले के पीबी शेली का रिलीजन जो है वो पोएट्री है। मतलब उतना ज्यादा उन्होंने पोएट्री में इन्वॉल्व थे, उतना ज्यादा ही वाज इन लव विथ पोएट्री। दैट्स व्हाई कौन बोले ये, मैथ्यू आर्नोल्ड। इस तरीके से भी आप लोग को एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से राइटर के बारे में क्या ओपिनियन दिए, क्या थॉट्स होंगे, क्या बोले होंगे। तो मैथ्यू आर्नोल्ड इनके बारे में ये ही बोले थे कि पोएट्री इनका रिलीजन है। दैट वाज इम्पोर्टेंट। सो पोएट्री जो है सुपीरियर है सब आर्ट फॉर्म्स में बोलकर शेली उसमें बताया। और उन्होंने बोले कि पोएट्री किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करती, ये एक एक्सप्रेशन है इमेजिनेशन का, इसमें कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, आप जितना चाहो पोएट्री पढ़ सकते हो। और पोएट्री जो है नेचर से अच्छी है। क्यों अच्छी है? बिकॉज इसमें इमेजिनेशन, नेचर में क्या है, कोई इमेजिनेशन नहीं है, रियलिटी है। और रियलिटी से ऑब्वियसली वी ऑल नो, रियलिटी से कहीं ज्यादा अच्छा इमेजिनेशन होता है। सो ही सेड के टाइम जो है नेचर की ब्यूटी को एक दिन डिस्ट्रॉय कर देता, मतलब नेचर जो है हमारा वो एक दिन डिस्ट्रॉय होने वाला है, लेकिन इमेजिनेशन कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो इन पोएट्री और इन फिलोसफी का एक, फिलोसफी को बोले कि फिलोसफी रूल्स के थ्रू चलती, लेकिन पोएट्री एग्जाम्पल्स के थ्रू चलती, जिसकी वजह से पोएट्री ज्यादा अट्रैक्टिव दिखती, फिलोसफी बोरिंग। एंड हिस्ट्री के बारे में इन्होंने बोले कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट गुड एंड इविल, लेकिन पोएट्री जो है, पोएट्री इज सो प्योर। इस तरीके से इन्होंने पोएट्री को डिफेंस करे थे। मतलब सब सब्जेक्ट्स के बारे में बताते हुए जब इन पोएट्री की बात पे आए तो ही सेड कि पोएट्री इज प्योर। Coming towards the next, that is Matthew Arnold. So Matthew Arnold was born in the year 1822 and died in the year 1888. He was the 19th century's famous critic. ये सारे राइटर्स के बारे में एक चीज सिमिलर है कि सारे लोग क्रिटिसाइज करे, से सारे क्रिटिक्स भी हैं। सो क्रिटिक के साथ साथ मैथ्यू आर्नोल्ड सोशल और कल्चरल इश्यूज पे भी काम करें। आर्ट ऑफ पोएट्री एंड आर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म इनके जो है बहुत ही फेमस क्रिटिसाइज्ड एसेस है। टचवुड मेथड यूज करे थे। यू नो व्हाट इज टचवुड मेथड? आप
आजकल सोशल मीडिया पे भी बहुत चल रहा, कोई कुछ अच्छा बोल दे तो यू से के टच वुड, मतलब बहुत ज्यादा आपके हार्ट को टच हुआ, उसका शॉर्ट फॉर्म है ये। मतलब हार्ट स्टोन एक ऐसा हार्ट स्टोन रहता जो कि कोई चीज को डिटरमाइन करने के लिए यूज होता, लाइक पीस ऑफ गोल्ड या फिर प्योर गोल्ड। तो इस ये मेथड यूज कर रहे थे। ये कंपेरेटिव मेथड रहता था जिसमें दो चीजों को कंपेयर किया जाता था, देन उसके बाद क्रिटिसाइज किया जाता था। तो ये जो टचवुड मेथड है वो मैथ्यू आर्नोल्ड ही इंट्रोड्यूस करे थे। सो यू ऑल नो व्हाट इज क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म जो है ग्रीक वर्ड से आया, दैट इज क्रिटिकोस एंड क्रिटिसिन, व्हिच मींस टू जज। कोई भी चीज को जज करना। अब ये मतलब नहीं है कि जज करने का कि आप उसको नेगेटिव वे में ही जज करोगे। इट इज कि आप उसको पॉजिटिव वे में भी जज कर सकते हैं, आप उसको नेगेटिव वे में भी जज कर सकते हैं। लेकिन वो जो जजिंग है, जो क्रिटिसिज्म है, इसके भी कुछ प्रिंसिपल्स है, जैसा कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ, मतलब सच्चाई के ऊपर है ना वो जजमेंट। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री, मतलब जो क्वालिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक्चुअली में वैसी ही रहना, आप उसमें मिक्सअप करके कुछ भी अपने हिसाब से क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। जो रियलिटी है उसी के बेसिस पे आप उसको क्रिटिसाइज करें। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म, मतलब एक्शन, जो आपका आइडिया है रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेशन समथिंग, वो परफेक्ट रहना चाहिए। So basically, there are three types of three principle of criticism. That is principle of truth, principle of symmetry, next principle of idealization. यहाँ तक ओके है आप लोग को? So next is new criticism. What is new criticism? 1940 to 1950 का जो टाइम था वो एक ऐसा टाइम था जहां पर क्रिटिसिज्म के न्यू वेस आए थे, न्यू क्रिटिसिज्म का एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुआ था। सो यहाँ पर जॉन ट्रू रैंसन जो है न्यू क्रिटिसिज्म को मतलब पब्लिश करे थे फर्स्ट टाइम, जो कि 1941 में अमेरिका में पब्लिश हुआ था। कौन इंट्रोड्यूस करे थे ये न्यू क्रिटिसिज्म? जॉन ट्रू रैंसन प्रोड्यूस करे थे, इंट्रोड्यूस करे थे 1941 इन अमेरिका। सो बेसिकली ये एक रिवॉल्ट था रोमांटिक एंड हिस्ट्रिकल अप्रोचेस के अगेंस्ट। तो ये एलिमेंट जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में ऑलरेडी यूज हुआ था 1924 में, लेकिन जब 1941 में फिर से इशू हुआ तो इसका नाम न्यू क्रिटिसिज्म है। हाँ, सो इसका एक और से इस टाइम के नोटेबल क्रिटिक्स जो है क्लीन ब्रोक्स, रॉबर्ट पेन वॉरेन, एलन टेल, आरपी ब्लैकमर, विलियम के, एफ के लिविस, ये सारे राइटर्स जो है इस टाइम के फेमस या फिर नोटेबल क्रिटिक्स हो सकते हैं जो कि न्यू क्रिटिसिज्म के टाइम पर थे। इन लोग के नेम्स में अलग से आप लोग को व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ ग्रुप में। So the new criticism था that was basically a marked by concentration on the language, imaginary and emotional and intellectual tensions of literary works. मतलब ये ना सिर्फ लैंग्वेज, इमेजिनेशन, इमोशनल बल्कि इंटेलेक्चुअल वर्क्स पर भी फोकस करता था। ये एक ऐसा पीरियड था, दैट्स व्हाई दिस पीरियड इज कॉल्ड एज न्यू क्रिटिसिज्म, बिकॉज यहाँ पर क्रिटिसिज्म का एक नया ही वे मालूम हुआ था। मतलब हर चीज पे, मतलब सिर्फ लैंग्वेज का ही क्रिटिसिज्म नहीं बल्कि लोगों के इमेजिनेशन का क्रिटिसिज्म, लोगों के इमोशंस का क्रिटिसिज्म और उन लोग के इंटेलेक्चुअल थॉट्स का भी क्रिटिसिज्म होना शुरू हो गया था। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस।
अब क्रिटिसिज्म जो है, क्रिटिसिज्म के भी टाइप्स है। जेंडर क्रिटिसिज्म, स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म, फेमिनिस्ट, प्रैक्टिकल, न्यूमेटिक, या फिर रीडर रेस्पॉन्स क्रिटिसिज्म। रीडर रेस्पॉन्स क्रिटिसिज्म ऐसा था जो कि रीडर्स क्रिटिसाइज करते थे पढ़े बाद, इसीलिए वो रीडर रेस्पॉन्स क्रिटिसिज्म है। इसी तरह साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म या फिर न्यूज क्रिटिसिज्म, ये सारे पार्ट्स ऑफ क्रिटिसिज्म है। व्हेन वी एंड दिस, इसके बाद हम जब फर्स्ट टाइम सिलेबस लेके चले थे तो हम कुछ बेसिक्स पढ़े थे पोएट्री के, जैसा कि प्रोस्कोडी, मीटर, एम्बिक मीटर, या फिर स्टैंजा, क्वार्ट्रेन, मेटाफोर, ऑक्सीमोरॉन क्या है, हाइपरबोल क्या है, पन क्या है, क्लाइमैक्स क्या है, और फिर ड्रामा के बेसिक्स पढ़े थे हम, प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डायलॉग, नरेटिव, नॉवेल, फिक्शनल, नॉन फिक्शन, माइथ, बायोग्राफी, ट्रेजेडी, नोवेला, ये सब। आई होप आप लोग को इसके डेफिनेशंस याद होंगे। देन ड्रामा का जॉनरस पार्ट पढ़े थे हम, मतलब सारे बेसिक चीजें पढ़े थे हम ड्रामा के एंड पोएट्री के। दैट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लिए थे। एलिगी क्या है, ऐसे सब। ये लिटरेरी जनरस पार्ट में आता, लाइक फिक्शन, प्रोज, ड्रामा के ओरिजिन्स क्या है, और डेवलपमेंट क्या है, एलिमेंट्स क्या है, फॉर्म्स क्या है, एंड टाइप्स क्या है। ये हमको रिपीट करना चाहिए क्या, लाइक जैसे कि एम्बिक मीटर क्या है, फिर प्लॉट क्या है, कैरेक्टर क्या है, डायलॉग क्या है। यू ऑल नो व्हाट इज डायलॉग। तो इसका जो ऑलरेडी टेस्ट है, क्लास के बाद आप लोग एक बार ट्राई टू अटेम्प्ट दैट टेस्ट। आई एम श्योर आप लोग उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिक्शन क्या है, नॉन फिक्शन क्या है, माइथ क्या है, रियलिज्म क्या है, बायोग्राफी क्या है, ऑटोबायोग्राफी क्या है, फेबल क्या है, फेरी टेल, फैंटेसी, थ्रिलर, नॉन थ्रिलर, चिल्ड्रन लिटरेचर, ये सब याद है आप लोग को, ये भूल गए? हेलो, टाइप करके बोल सकते हैं आप लोग। या इसी के साथ अब आज हमारा जो पार्ट 1A था वो कंप्लीट हम कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह। पार्ट 1B जो है राइटर्स एंड टेक्स्ट, वो हम नेक्स्ट संडे से स्टार्ट करेंगे। अब राइटर्स एंड टेक्स्ट में हम जब पढ़े थे तो हम उसको पोएट्री, प्ले एंड नॉवेल्स इस हिसाब से डिवाइड करे थे। लाइक हमारे पास 6 पोएट्रीज, 6 प्लेस एंड 8 नॉवेल्स है। तो हम ऐसा करेंगे कि ऐसा लास्ट टाइम जैसा हम पढ़े थे कि एक संडे एक पोएट्री, वैसे नहीं, बल्कि जितना मैक्सिमम हो सका 3 to 4 पोएम्स एक संडे, इस तरीके से कर कर वी स्टिल हैव 9 संडेज इन अवर हैंड्स। तो एक बार मैं चाह रही हूँ कि अगर हम 4-5 संडेज में भी अगर सिलेबस कवर करें तो हम एवरी संडे टेस्ट ले सकते हैं, हम जो बचे सो संडे से ऐसा ग्रैंड टेस्ट ऐसे कर कर, सो दैट आप लोग की कुछ और अच्छी प्रैक्टिस हो जाती। या फिर हम लोग सारे लोग अनम्यूट कर कर एक क्लियर डिस्कशन कर सकते हैं कुछ टॉपिक्स पे जो रह गए, फॉर योर क्लियर अंडरस्टैंडिंग, isn't it? Okay, so we'll end up our class here. Thank you all for giving your time. कुछ भी डाउट्स है तो डू व्हाट्सएप में।